السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. تلنگانہ ہائی کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ کو نامعلوم سائبر مجرموں نے ہیک کر لیا، جس کا انکشاف اس وقت ہوا جب عملے نے ویب سائٹ پر موجود مختلف PDF فائلوں میں چھیڑ چھاڑ دیکھی۔ ہائی کورٹ کے IT رجسٹرار ٹی وینکٹیشور راؤ نے فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو دیتے ہوئے بتایا کہ کورٹ کی ویب سائٹ نیشنل انفارمیٹکس سینٹر کے ذریعے BRKR بھون ٹینک بند روڈ سے چلائی جا رہی ہے۔ اس ویب سائٹ پر روزانہ عدالتی معلومات جیسے کاز لسٹ، کیس سٹیٹس اور انتظامی نوعیت کے نوٹیفیکیشنز و دیگر PDF دستاویزات فراہم کی جاتی ہیں۔ راؤ کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ ویب سائٹ پر موجود کئی PDF فائلیں نہ صرف غیر فعال ہو گئی تھیں بلکہ ان پر کلک کرنے پر ایک BDG سلاٹ نامی گیمنگ سائٹ پر ری ڈائریکٹ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اسے واضح طور پر ہیکنگ اور سائبر جرم قرار دیا جو ہائی کورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد NIC NIC کے عہدیداروں نے PDF فائلوں پر چھیڑ چھاڑ کی تحقیقات شروع کر دی اور ان کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ رجسٹرار نے DGP سے درخواست کی کہ متعلقہ حکام کو FIR درج کرنے اور واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے کی ہدایت دی جائے۔ شکایت کی بنیاد پر حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے IT ایکٹ کی دفعات 66 43 66C D 66 دفعہ 337 B NS اور تلنگانہ گیمنگ ایکٹ کی دفعہ 31I کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ VC سجنار کے نام سے فیک فیس بک اکاؤنٹس ایکٹیو۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کے دوست سے 20,000 روپے لوٹ لیے گئے۔ حیدرآباد میں سائبر کرائم کا نیا طریقہ، کمشنر VC سجنار کے نام سے فیک فیس بک اکاؤنٹ بنا کر دوستوں سے پیسے منگوا لیے اور اسکیم کر دیا گیا۔ سجنار نے سٹی کو الرٹ کیا ہے کہ ایک دوست کو 20,000 کا دھوکہ ہو گیا ہے، کسی بھی سسپیشیس میسج، لنک یا کال کو بلاک کریں۔ پہلے پرسن سے کال پر ویریفیکیشن کریں۔ پولیس سائبر کرائم ہیلپ لائن 1930 cybercrime.government.in پر کمپلینٹ کریں اور میٹا ٹیم فیک پروفائلز ڈیلیٹ کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے جوبلی ہلز علاقے میں کار الٹ گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ یہ کار تیز رفتار کے ساتھ جا رہی تھی کہ بے قابو ہو کر پہلے بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی اور پھر الٹ گئی۔ حادثے میں کار میں سوار ایک نوجوان خاتون زخمی ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق حادثے کے وقت ایئر بیگ کھل جانے سے خاتون کی جان بچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور بچاؤ کارروائیاں انجام دی۔ خاتون ڈرائیونگ سیٹ میں پھنس گئی تھی جسے شیشے توڑ کر باہر نکالا گیا اور فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ خاتون مبینہ طور پر نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ شہر حیدرآباد کے بشمول دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کئی مقامات پر شدید سردی کی لہر دیکھی جا رہی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت کے قطب اللہ پور، گجولا، رامارم، ملکاجگری، فلک نما، چندرائن گٹا، مہدی پٹنم، حیات نگر، کاروان، امبر پیٹ، گوشا محل، کاپرا اور مشیرآباد سمیت کئی علاقوں میں سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں سرد ہواؤں کی شدت زیادہ دیکھنے میں آ رہی، جبکہ سنگاریڈی، آصف آباد، وقار اور ابراہیم پٹنم میں درجہ حرارت 10 ڈگری سے بھی کم ہو گیا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آندھرا پردیش کے جنسی علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہے، جہاں شدید قہر کے باعث لوگ بری طرح پریشان ہیں۔ ساحلی اور شمالی آندھرا کے کئی علاقوں میں شدید قہر کے ساتھ ساتھ شدید سردی ریکارڈ کی گئی۔ الوری سیتارامراجو ضلع کے جی ماردوگولا میں اقل ترین درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جو اس موسم کی شدید ترین سردی میں شمار کیا جا رہا۔
फैंसी गाड़ी नंबर प्लेट्स के ऑनलाइन हराज से तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 65,38,000 रुपए की आमदनी हुई है। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के खैरताबाद RTA ऑफिस में मुनक़दा हराज में TG09H9999 नंबर रिकॉर्ड 22,72,222 रुपए में हॉनर प्राइम हाउसिंग LLP ने हासिल किया। इसी हराज में नंबर TG09J9999 नंबर दंदो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 6,80,000 रुपए में खरीद लिया। TG09J6606 साई सिल्क्स कला मंदिर लिमिटेड ने 5,70,000 रुपए में हासिल किया। TG09J0099 नंबर गोदावरी फॉर्च्यून ने 3,40,000 रुपए में खरीदा। TG09J0001 नंबर श्रीनिधि IT स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2,60,000 रुपए में हासिल किया। TG09J0005 नंबर निहारिका एंटरटेनमेंट ने 2,40,000 रुपए में हासिल किया। मजीद कई दीगर फैंसी नंबर भी 1,15,000 से 1,71,000 रुपए के दरमियान मुख्तलिफ कंपनियों ने खरीदे। अवाम की बड़ी तादाद ने नए राशन कार्ड हासिल तो कर लिए, लेकिन अब तक EKYC मुकम्मल नहीं किया है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में राशन की फराहमी में रुकावटें पेश आ सकती हैं। इसी अहम मसले पर तवज्जो दिलाते हुए मेहदीपट्टनम की असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने अवाम से फौरी तौर पर EKYC मुकम्मल करने की अपील की है। बुशरा सुल्ताना ने कहा है कि उनका मकसद हमेशा यही रहा है कि जरूरी सरकारी मालूमात अवाम तक बर वक्त पहुँचे ताकि लोग अपने काम आसानी से और वक्त पर अंजाम दे सकें। उन्होंने बताया कि बहुत से अफराद ने सिर्फ राशन कार्ड हासिल करके रख दिए मगर EKYC नहीं करवाया, जो कार्ड की हिफाजत और बाकायदा राशन फराहमी के लिए निहायत जरूरी। उन्होंने वजाहत की कि एक राशन कार्ड में जितने भी मेंबरान दर्ज हैं उन सब के अंगूठे की तस्दीक बायो ऑथेंटिकेशन करीबी राशन शॉप पर करवानी होती है। एक बार EKYC मुकम्मल हो जाने के बाद कार्ड पूरी तरह महफूज हो जाता है और तकनीकी मसाइल का खतरा कम हो जाता है। उनके मुताबिक मेहदीपट्टनम सर्कल में बहुत से मेंबरान रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अब तक सिर्फ चंद फीसद लोगों ने ही अपना EKYC मुकम्मल किया है, जबकि बाकी आधे अफराद इस अहम अमल से अभी तक महरूम हैं। उन्होंने कहा है कि कई कार्ड्स ऐसे हैं जिन पर हंगामी बुनियादों पर EKYC की जरूरत है। ऑफिसर ने अवाम को मशवरा दिया कि वो किसी भी करीबी राशन शॉप पर जाकर जल्द अज जल्द EKYC मुकम्मल करें। उन्होंने ये भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन के दिनों के अलावा भी डीलर्स को खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई है कि 21 से 25 तारीख तक दुकानें EKYC के लिए खुली रखी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। आखिर में बुशरा सुल्ताना ने जोर देते हुए कहा है कि जो भी खानदान अभी तक EKYC नहीं करवा सके वो इसी माह में ये अमल मुकम्मल कर ले, वरना मुस्तकबिल में राशन हासिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एक बार पूरे फैमिली मेंबरान के साथ जाकर EKYC करवा लें ताकि किसी किस्म की तकनीकी रुकावट ना आए। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि कोई भी शहरी राशन से महरूम ना रहे। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव KTR जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की उम्मीदवार मगंती सुनीता की रिहाइशगाह पहुंचे। KT रामाराव का ये दौरा BRS क़यादत की जानिब से हिमायत और हौसला अफजाई के तौर पर देखा जा रहा। पार्टी ज़राए का कहना है कि KTR ने सुनीता की इंतखाबी मुहिम में की गई मेहनत की तारीफ की और मुस्तकबिल में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। दिल्ली और कौमी राजधानी इलाके NCR एक बार फिर शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में है। बेशतर इलाकों में AQI बहुत खराब से संगीन दर्जे तक रिकॉर्ड की गई, जिसने शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी और सेहत दोनों पर गहरा असर डाला। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पूरा खित्ता तेजी से एक गैस चैम्बर में तब्दील होता महसूस हो रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतअद्दिद इलाकों में 400 से ऊपर पहुंच चुका है और कई मुकामात पर ये सतह 500 के करीब दर्ज की गई, जिसे आलूदगी का इंतहाई संगीन दर्जा तस्वुर किया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक NCR के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, लोनी संजयनगर और वसुंधरा जैसे इलाकों में हवा की कैफियत संगीन दर्जे में पाई गई। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 413 तक पहुंच गई, जो सेहत के लिए निहायत खतरनाक है। नोएडा के दीगर इलाकों जिनमें सेक्टर
सेक्टर 125, सेक्टर 62 और सेक्टर 1 शामिल हैं। इनमें भी आलूदगी बहुत खराब से संगीन सतह के दरमियान दर्ज की गई। बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 के हतमी नताइज के बाद अब हल्फ बर्दारी के हवाले से कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। 2 मराहल में मुकम्मल होने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात के बाद अब जबकि रियासत की सियासत की सिमत तय हो गई है तो ये जानना जरूरी है कि मुंतखब होने के बाद कितनी मुद्दत में ओहदे का हलफ लेना होता है और इसके लिए किस तरह की कार्रवाई होती है। बता दें कि हिंदुस्तानी आइन में मुंतखब नुमाइंदों या वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाने के लिए कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं। ये अमल आमतौर पर इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद जल्द अज जल्द पूरा कर लिया जाता है, लेकिन इसके लिए दिनों की कोई मुकर्रर तादाद नहीं है। ज्यादातर रियासतों में हलफ बर्दारी के तकरीब नताइज के 3 से 10 दिनों के अंदर होती है। ये इस बात पर मुनसर होता है कि अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी या इत्तेहादी कितनी जल्दी हुकूमत बनाने का दावा पेश कर पाते हैं। ये अमल इस वक्त शुरू होता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हतमी नताइज का ऐलान कर देता है। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन जीतने वाले उम्मीदवारों की मुतल्लिका रियासती असम्बली या पार्लियामेंट को बाज़ाब्ता तौर पर मतला करता है। इस मरहले के दौरान जीतने वाले उम्मीदवार को मुंतखब मेंबर असम्बली MLA या रुकने पार्लियामेंट MP कहा जाता है। इसके बाद असम्बली में वाज़े अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी या इत्तेहाद अपना दावा पेश करने के लिए गवर्नर या सदर से रुजू करता है। अगर किसी एक पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं होती तो वो गवर्नर या सदर हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत का दावा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी या इत्तेहाद को मदऊ कर सकते हैं। इस दावे के साथ MLA या MP के हिमायती खतूत के साथ होना जरूरी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुजव्वज़ा हुकूमत तहरीक एतमाद में कामयाब हो सकती है। एक बार जब गवर्नर या सदर इस बात से मुतमईन हो जाते हैं कि किसी भी पार्टी या इत्तेहाद के पास मुकम्मल अक्सरियत है तो वो इसके लीडर को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। मरकज में ये दावत सदर जमहूरिया की तरफ से उस लीडर को दी जाती है जो वज़ीर आज़म बनेगा और रियासतों में गवर्नर मुमकिना वज़ीर आला को मदऊ करते हैं। इस हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले जीतने वाली पार्टी या इत्तेहाद के मुंतखब अरकान बाज़ाब्ता तौर से अपने लीडर का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में तय किया जाता है कि मरकज में वज़ीर आज़म या रियासत में वज़ीर आला कौन बनेगा। इसके बाद रहनुमा हिमायती अराकीन की फहरिस्त गवर्नर या सदर पेश की जाती है। जैसे ही रहनुमाई की तस्दीक हो जाती है तो वो अपने वुज़रा कौंसिल का इंतखाब शुरू कर देते हैं। आइन के मुताबिक मुक़न्ना के कुल अरकान में से 15% से ज्यादा को वज़ीर नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद रस्मी प्रोटोकॉल और मीडिया कवरेज के साथ हलफ बर्दारी की तकरीब की जाती है। ये तकरीब अक्सर राजभवन या किसी अवामी मुकाम पर मुनक्किद की जाती है। हलफ बर्दारी के बाद नई हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिदार संभाल लेती है। मुंबई की खसूसी PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर और NCP लीडर नवाब मलिक से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिस्चार्ज दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही मलिक समेत तमाम मुलजिमीन को 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत में मौजूद रहने का हुक्म दिया। डिस्चार्ज की दरख्वास्त मलिक की कंपनी मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने दायर की थी। कंपनी ने इस्तदलाल किया कि ED का पूरा मामला अंदाजों और कयास आराइयों पर मबनी है क्योंकि जिस वक्त मुबैना तौर पर गैर कानूनी लेन देन हुआ तब कंपनी मौजूद नहीं थी। खसूसी जज सत्यनारायण और नवेंद्र ने कहा है कि इल्जामात तय करने के लिए काफी बुनियादी सबूत मौजूद हैं। अदालत ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर, सलीम पटेल और D कंपनी से वाबस्ता मुलजिम सरदार खान के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए प्लॉटों को कानूनी शक्ल देने में हिस्सा लिया जो जुर्म से हासिल रकम के जुमरे में आता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.